Good afternoon, students. This is Anurag Kumar Dubey, chemistry teacher from Sugar Singh Children Academy. In last lecture, we discussed about bond parameter like as bond length, bond angle, and bond energy. Today, we are going to start a new topic: limitations of octet rule. Okay, limitation of octet rule. In last lecture we have discussed about octet rule. What is octet rule? The elements which have tendency to achieve 8 electrons in their valence shell by sharing of electron or by exchange of electron except noble gases. Okay, कम पता है ना क्या octet rule है हमारा? The atoms which have tendency to achieve 8 electrons in their valence shell like noble gases helium, neon, krypton, argon, krypton, xenon, radon. Okay, by sharing of electron or by exchange of electron is known as octet rule. Okay, today we are going to discuss limitation of octet rule. Okay, there are 3 type of limitation. How many type of? 3 types of limitations, या कह सकते हैं 3 types of exceptions. 3 types of exceptions to the octet rule. To the octet rule. First, incomplete octet of the central atom. Incomplete octet of the central atom. Okay, and second, odd electron molecules. Okay, and third exception is expanded octet of the central atom. Okay, central atom, incomplete octet of the central atom, odd electron molecules, and expanded octet of the central atom. Okay, these are exception of octet rule. First of all, we will discuss about incomplete octet of the central atom. Okay, what is the incomplete octet of the central atom? The molecules which have less than 8 electron on the central atom. What is the incomplete octet of the central atom? कहेंगे क्या? The molecules which have less than 8 electrons on the central atom is called incomplete octet. Is called incomplete octet. Okay, for example, in the formation of certain molecules like as LiCl, BeCl2 and BeF2 and BF3 and BCl3 etc. These molecules contain incomplete octet on the central atom, or you can say
These are electron deficient molecules. How to prove it? कैसे इसको हम प्रूव करें? तो इसको प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज LiCl, BeCl2, BF2, BeF2, बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइक्लोराइड. These are exception of incomplete octet. Okay, तो फर्स्ट एग्जाम्पल सपोज दैट BeCl2. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक Lewis structure of the molecules. तो बेरिलियम is the central atom and chlorine is the surrounding atom which is present around the beryllium. Okay, तो बेरिलियम atomic number of beryllium is 4, electronic configuration 2, 2. Okay, तो बैलेंस शेल है 2 electrons, तो it is represented by Lewis dot symbol. And chlorine atom atomic number 17, 2, 8, 7, balance cell has 7 electron, but here is 2 chlorine atom, this is present around the nucleus, and balance cell has 7 electron. तो 7 electron we will represent by Lewis symbol 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, chlorine required 1 electron to complete octet, so chlorine share 1 electron with both beryllium and complete their octet 7 and 1, 8. Okay, this chlorine also share 1 electron with beryllium and complete their octet. Okay, we know very well how to make covalent bond by equal sharing of electron between 2 atoms. If chlorine share 1 electron with beryllium, so beryllium also share 1 electron with chlorine. Beryllium only can share 1 electron, not 2 electrons. Okay, तो beryllium, if both chlorine share 1 electron with beryllium, so beryllium share 1 electron with each chlorine like this. Okay, अब चेक करते हैं. This is the shared pair electron. This is the shared paired electron, है ना. कहेंगे such type of electron which take part in the bond formation. ये कहेंगे कि such type of electron which participate in the bond formation, that is a shared paired electron. ओके, तो शेयर्ड को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर दोनों एटम का बराबर हक होता है. वाई? बिकॉज दिस इज शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये साझे का इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, बेरिलियम के लिए भी और क्लोरीन के लिए. तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8. इट मीन्स chlorine has 8 electrons in their valence shell, and this chlorine 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8. This chlorine also has 8 electron, but beryllium has 2 and 2, 4 electron, only 4 electron. This is the less than 8. If this is the central atom, if central atom have, या कह सकते हैं if central atom has less than 8 electron, it means कि this molecule does not obey octet rule. ये octet rule को फॉलो नहीं करता है. octet rule को कौन फॉलो करेगा? If elements contain 8 electrons in their valence shell, ऐसे एलिमेंट ऑक्टेट को फॉलो करेंगे जिनके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा. लेकिन ये एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है. क्यों? क्योंकि क्लोरीन तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है. क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से इसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जा रहे हैं. तो क्लोरीन तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, बट बेरिलियम डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 2 and 2, 4 इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स यू कैन से कि बेरिलियम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है. अब बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो बेरिलियम
शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, वन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्म वन कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे वन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्म वन कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, और ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या इसके पास प्रेजेंट रहेंगे, क्लोरीन के पास 2 2 4 2 6। अब काउंट करिए 2 2 4 2 6 और वन बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 बट बेरिलियम हैज 2 and 2 4, इसके पास 4 8 8 बट बेरिलियम कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, इट इज लेस देन 8, it means you can say beryllium chloride does not follow octet rule. If beryllium chloride does not follow octet rule, it means you can say this is the exception of octet rule. Okay, चलिए next example BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड। ओके, तो बोरान इज द सेंट्रल एटम एंड फ्लोरीन इज द अराउंड एटम, जो इसके अराउंड में है चारों तरफ। तो बोरान अराउंड को ऐसे लिख लेंगे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक लुईस स्ट्रक्चर। तो बोरान एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3 एंड फ्लोरीन atomic number 9, electronic configuration 2 7. okay, 2 3 मतलब boron has 3 electrons in their valence shell and fluorine has 7 electrons in their valence shell. okay, 2 2 4 2 6 and 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, है ना। तो फ्लोरीन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, सो फ्लोरीन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ बोरान and this fluorine also share 1 electron with boron and this fluorine also share 1 electron with boron. okay, तो 3 fluorines share 1 electron with boron और boron share 3 electron with each fluorine. ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना फ्लोरीन शेयर करेगा उतना ही ब्रोमीन शेयर कर सकता है, सॉरी बोरान शेयर कर सकता है। तो एक एक फ्लोरीन शेयर कर रहे हैं तो बोरान भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन सबके साथ शेयर करेगा। ठीक है, अब चेक कर लीजिए फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। बट बोरान के पास चेक करिए कितना हुआ, 2 2 4 2 6, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है बोरान के पास 6। दिस इज सेंट्रल एटम, ये क्या है सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, electron deficient. If central atom has less than 8 electrons, not 8 electrons, less than 8 electron, it means 6 electron, है ना। It means boron trifluoride does not obey octet rule. This is the exception of octet rule. तो हमें लगता है कि आपको ये फर्स्ट एक्सेप्शन समझ में आ गया होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द एटम। सेकेंड एक्सेप्शन, ऑड नंबर या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ओके, देयर आर certain molecules which have odd number of electrons like nitric oxide and nitrogen dioxide. There are certain molecules which have odd number of electrons like nitric oxide and nitrogen
डाइऑक्साइड. In these cases, octet rule is not satisfied for all the atoms. Okay, so what is odd electron molecules? There are certain molecules, कुछ ऐसे molecules हैं which have odd number of electrons, जिसमें क्या है odd number of electrons है, like nitric oxide and nitrogen dioxide. In these cases, कैसे केसेस में? Such type of molecules which contain odd number of electrons, in these cases octet rule is not satisfied for all the atoms. ऐसे केसेस में जो ऑक्टेट रूल होता है वह सभी एटम को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है. फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो N एंड O. ओके, तो लुईस स्ट्रक्चर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5. ओके, 2 5 1 2 3 4 5. and oxygen atomic number 8, electronic configuration 2 6 1 2 3 4 5 6. This is the Lewis structure of nitric acid. Okay, nitric oxide, sorry. तो oxygen has 6 electron in their valence shell, so required 2 electrons for complete octet. So oxygen share 2 electron with nitrogen electron. Okay, तो 2 to 4 to 6 to 8 हो गया. If oxygen share 2 electron with nitrogen atom, तो nitrogen atom also share 2 electron with ऑक्सीजन एटम. तो ये भी क्या करेंगे, तभी शेयरिंग कैसी होगी हमारी, इक्वल शेयरिंग. जब इक्वल शेयरिंग होगा तभी ये कोवैलेंट बॉन्ड हमारा बनेगा. हमेशा जान लीजिए, कोवैलेंट बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स. ओके, अब इसमें आप चेक करिए, अब इसके पास ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 to 4 to 6 to 8. नाइट्रोजन के पास का कितने हुए, 2 to 4 to 6 and 1 7. इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन. तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है. बट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेस देन 8 है. दिस इज ऑड नंबर. ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर. अब स्ट्रक्चर बनाएंगे. हियर इज हाउ मेनी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. एक पेयर को हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर. तो कितने पेयर है यहाँ पे, 1 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. इफ देयर इज 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स देयर विल बी फॉर्म 2 कोवैलेंट बॉन्ड. कितना बनेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 शेयर्ड पेयर है, ऑक्सीजन, और ये हमारे क्या है, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे क्या है, हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. अब इसमें देखिए, इसके पास 7 है, इसके पास 8 है, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, और ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्टेट भी क्या है, इनकम्प्लीट है. इट मीन्स यू कैन से दिस इज एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल. ये भी क्या है, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है. अनदर एग्जांपल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2. तो इन NO2 nitrogen is a central atom. Okay, nitrogen and oxygen, here is the 2 oxygen which is present around the nitrogen. First of all we will make Lewis structure. Okay, so we know very well 6 electron present in valence shell of oxygen, and 6 electron also present in this oxygen, and nitrogen has 5 electrons in their valence shell. Okay, तो 1 मान लीजिए 2 3 4 5. ओके, क्लियर हो गया. 2 to 4 to 6 है ना. 6 नाइट्रोजन रिक्वायर्ड
2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट ऑक्टेट, है ना। तो ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विथ नाइट्रोजन एटम, तो 2 to 4 to 6 to 8 कंप्लीट हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन, इसको भी कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट ऑक्टेट। अब मान लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को हम दे दें, किसका, नाइट्रोजन का, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक माइनस चार्ज, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आगे इसके पास कितना हो गया, 2 to 4 to 6 1 7। अब ये इसके एक इलेक्ट्रॉन से क्या किया, शेयर कर लिया, तो इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 1 2 3, एक ये ले गया 4 और एक ये 5, बैलेंस सेल हैज 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 3 4, और एक इलेक्ट्रॉन मैंने किसको दे दिया, ऑक्सीजन को, जिसके इसके ऊपर के कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, और बैलेंस सेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, एक माइनस मतलब क्या कि नाइट्रोजन का अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो इसके ऊपर माइनस चार्ज और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो एक इसको दे दिए, बचा 4, 1 2 3 4, ओके। अब नाइट्रोजन भी क्या करेगा, दिस ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विथ नाइट्रोजन, ओके, एंड दिस ऑक्सीजन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ नाइट्रोजन, तो इक्वल नंबर में शेयरिंग करेगा कौन, नाइट्रोजन, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 to 4 to 6 to 8, इट मीन्स ऑक्टेट इज कंप्लीट, है ना। इसमें देखिए 2 to 4 to 6 to 8, ऑक्टेट इज कंप्लीट। बट इन द केस ऑफ नाइट्रोजन 2 to 4 to 6 1 7, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स if there is a 7 electron that is below 8, if below 8 it means exception of octet rule, और it is odd number of electron, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, odd number of इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्ड बनाएंगे तो कैसे बनेगा, n, यहाँ पे 1 शेयर पेयर्ड सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज, और 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 शेयर पेयर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 to 4, और ये मिलकर के क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए 2 to 4 to 6 to 8, मतलब 1 कोवैलेंट बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 to 5 to 6 to 8, 2 to 4 to 6 to 8, इसके पास 2 to 4 to 6 to 8, बट नाइट्रोजन के पास कितना है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो 2 to 4 to 6 1 7, इसके पास 8 8। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया है, बट नाइट्रोजन हैज 7 इलेक्ट्रॉन विच इज बिलो 8, जो 8 से कम है, दैट इज आड नंबर, तो यू कैन से कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। थर्ड है एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। थर्ड एक्सेप्शन क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। कहें क्या कि देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स, देयर आर मेनी, या कैसे देयर आर मेनी स्टेबल मॉलिक्यूल्स which have more than 8 electrons in their valence cell, okay। तो expanded octet means more than 8, like as the 9 10 11 12 13 14 15 which is more than 8, such type of molecule
which contain more than 8 electron on central atom, that is expanded octet, है ना. What is octet rule? The atoms which have tendency to achieve 8 electrons in their valence shell by sharing of electron or by exchange electron. Okay, it means octet rule means कि बैलेंस सेल शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन, नॉट 7 नॉट 9. ओके, कितना होना चाहिए? सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए बैलेंस सेल में, तभी हम क्या कहेंगे कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है. इफ मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, कहेंगे देयर आर मेनी स्टेबल मॉलिक्यूल्स विच हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर बैलेंस सेल. कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनके सेंट्रल एटम के बैलेंस सेल में, सेंट्रल एटम के बैलेंस सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है तब भी वो क्या होगा? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल होगा. इफ लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है तब भी क्या होगा? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक एज PCl5, SEF6, IF7, H2SO4 and PF5 etc. है ना. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसे PCl5. नाउ कंसीडर PCl5. तो सेंट्रल एटम इज P, जो सबसे मिनिमम नंबर में होगा मॉलिक्यूल्स में वो हमारा क्या होगा? सेंट्रल एटम. जो मैक्सिमम नंबर में होगा दैट इज सराउंडिंग एटम्स. ओके, तो P कहां पे रहेगा? सेंटर में, एंड Cl अराउंड में रहेंगे. ये हो गया. ओके, अब इसका क्या बनाएंगे? लुईस स्ट्रक्चर. फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 2, 8, 5. तो 1, 2, 3, 4, 5. और क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7. बैलेंस सेल है 7 इलेक्ट्रॉन. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so every chlorine required 1 electron to complete their octet. So every chlorine share 1 electron with phosphorus. Every chlorine share 1 electron with phosphorus. Okay, or if every chlorine share 1 electron with phosphorus, so phosphorus also share 1 electron with every chlorine. एक एक इलेक्ट्रॉन सबके साथ क्या करेगा? शेयर करेगा. क्यों? क्योंकि सभी क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के साथ शेयर किया है. मतलब ऐसे. ओके, अब ये हमारा क्या है? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब चेक करिए, क्लोरीन के पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 एंड सो ऑन. अब फास्फोरस के पास देखिए, सेंट्रल एटम के पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10. कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 10. मतलब मोर देन 8. और इन सब के पास कितने हैं? 8. मतलब एवरी क्लोरीन ओबे ऑक्टेट रूल. सभी क्लोरीन क्या करते हैं? ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहे हैं. Why? Because every chlorine has 8 electron in their valence shell. But phosphorus has 10 electrons in their valence shell. If more than 8 electron present in their valence shell, it means that is exception of octet rule or limitation of octet rule. Okay? अब इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे. बॉन्डिंग स्ट्रक्चर तो कैसे बनेगा? P 1 शेयर्ड पेयर, तो Cl 1 शेयर्ड पेयर मीन्स 1 कोवैलेंट बॉन्ड, फिर Cl एंड Cl. ओके, अब जो ये सभी क्या हैं? ये सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इनको ऐसे ही दिखा दीजिए सब. ओके, क्लियर हो गया?
Another example, SF6. S is the central atom and fluorine is the surrounding atom. Number of fluorine 6. Okay, so 1 2 3 4 5 and 6. Sulfur atomic number 16, electronic configuration 286. Fluorine atomic number 9, electronic configuration 27. तो बैलेंस सेल हैज 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 and 6. And fluorine has 7 electron. Fluorine has 7 electron. तो 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो एवरी फ्लोरीन मतलब 6 फ्लोरीन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट. सो एवरी फ्लोरीन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ सल्फर 718 718 and 718 and 718 718 and 718. Okay, if every fluorine share 1 electron with sulfur, so sulfur also share 1 electron with each fluorine. मतलब इस तरह से, ऐसे. ओके, अब चेक करिए. फ्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8. मतलब every fluorine contains 8 electrons in their valence shell. It means every fluorines obey octet rule. But sulfur 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12. It means 12 electron around sulfur. If 12 electron around sulfur, it means it is greater than 8, है ना. Expanded octet means if central atom contain more than 8 electron, तो such type of molecule does not obey octet rule. तो this molecule does not obey octet rule. Another example, IF7, इसको आप खुद बनाइएगा. H2SO4, इसको भी आप खुद बनाइएगा. स्ट्रक्चर जैसे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O बॉन्ड H एंड O बॉन्ड H. पहले आप इसका लुईस स्ट्रक्चर, एटम को ऐसे ही सेट करिएगा सब. पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाइएगा, उसके बाद देखिएगा इसके पास 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12. कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन अराउंड सल्फर. बाकी हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट होता है, कभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, हमेशा डबलेट. अगर बात करें H2 मॉलिक्यूल का, तो इन H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1. कितना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1. और वी नो वेरी वेल 1 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और फॉर k सेल n इक्वल टू 1. ओके, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन k सेल कितना हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट, या कह सकते हैं हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर मेकिंग स्ट्रक्चर लाइक हीलियम. और हीलियम आल्सो इज अ स्टेबल एटम लाइक नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन. तो अनदर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिस हाइड्रोजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन दिस हाइड्रोजन. एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 कितना हो गया? इसका 2 और इसका हो गया 2. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? हीलियम के पास, है ना. तो हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसकी तरह? हीलियम की तरह. मतलब ये डबलेट कंप्लीट करते हैं. यहाँ पर ऑक्टेट रूल का कोई यूज नहीं है. ओके, समझ में आया आपको? चलिए, अदर ड्रॉबैक्स ऑफ octet rule.
other drawbacks of octet rule. It may be noted that octet rule based upon chemically inert noble gases. ओके, ऑक्टेट रूल किस पे बेस्ड है? केमिकली इनर्ट नोबल गैसेस पर. वी नो वेरी वेल, हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि एवरी एलिमेंट ट्राई टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर बैलेंस शेल. ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं कि इट मे बी नोटेड दैट ऑक्टेट रूल बेस्ड अपॉन द chemically inert noble gas. However, it found that some noble gases like krypton and xenon combined with oxygen and fluorine and form a large number of compounds like as XeF2, XeF4 and XeF6 and XeOF2 and XeOF4, है ना. और वी नो वेरी वेल कि नोबल गैसेज इज inert compound, noble gases is inert elements. These are chemically inert. Yeah, noble elements like as helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These elements do not participate in the formation of bond. ये bond formation में participate नहीं करते हैं. But however, it is found that कि some of the noble gases like krypton and xenon combine with oxygen and fluorine and form a large number of compounds. Why? क्यों फॉर्म कर रहे हैं? और वी नो वेरी वेल कि दीज आर केमिकली इनर्ट. तो इनको तो कभी दूसरे एलिमेंट से पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये पार्टिसिपेट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. दिस इज आल्सो एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल. ओके, एंड अनदर ड्रॉबैक्स, octet rule does not explain shape of molecules. Octet rules does not explain shape of molecules. And another exception of octet rule is कि it cannot be explain stability of molecules. ये मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है. कौन? ऑक्टेट रूल. इफ अगर नहीं देता है इसका मतलब दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल. ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है. एंजॉय विथ केमिस्ट्री एंड आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.